Hello, my dear students. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. We are learning clauses. In my previous video, we learned that there are three types of clauses: noun clauses, adverb clauses, and adjective clauses. We have already done adverb clauses. Today, let's understand what are adjective clauses. So, let's get started. Before understanding clauses, we must understand what is an adjective. तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव क्लॉजेस पढ़ने जा रहे हैं ना हम, तो वी मस्ट नो व्हाट इज एन एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. इन हिंदी वी कॉल इट विशेषण. तो विशेषता जो बताए नाउन या प्रोनाउन की, या जो कुछ ऐड करे नाउन के बारे में, उसे कहते हैं एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो गर्ल के बारे में बता रहे हैं नाउन और प्रोनाउन. तो प्रोनाउन है ये शी, तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? दैट शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो ब्यूटिफुल जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषता है लड़की की. Okay, it is describing the girl that she is beautiful. So beautiful is an adjective here. There are 70 teachers in this school. So teachers is a noun here, and 70 teachers hai. Teachers, it's adding something to describe the teachers. Okay, and what is that? The number of the teachers is 70. 70 टीचर है, 70 टीचर्स हैं. टीचर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. The whole story was concocted. Concocted is मनगढ़ंत. Story is a noun here. और स्टोरी के बारे में क्या? कौन सी स्टोरी? Whole story, complete, full. Whole story was concocted. सारी कहानी जो थी वो मनगढ़ंत थी. तो whole is, the whole word is an adjective here. ठीक है? Many children joined the game. Children joined the game. और children के बारे में extra information क्या है कि कितने children हैं? Many. So many is an adjective here. We live near the snow-clad mountain. तो जहाँ हम रहते हैं, या हम यूँ कहिए कि हम स्नो क्लैड माउंटेन के पास रहते हैं या नज़दीक रहते हैं. स्नो क्लैड मीन्स कवर्ड विथ स्नो. तो दिस इज एडिंग समथिंग टू द माउंटेन, दैट इज नाउन. नाउन के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है ये. और ये क्या है? स्नो क्लैड, की बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है जिसके नज़दीक हम रहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव हमें पता लग गया कि वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, नाउ व्हाट इज अ क्लॉज? We have learned what is an adjective. Now let's learn what is a clause. It's a part of a sentence which has a subject and a verb of its own. Now it is a part of a sentence. Clause is a part of a sentence which has a subject and verb of its own. इसका subject भी होता है और verb भी होता है, लेकिन ये part of a sentence होता है. पूरे sentence को clause नहीं कहते. Okay, it's a part of a sentence. Understood? Now let's understand this with the help of these examples. This is the college where I studied. This is a whole sentence, and this is a clause. ये clause है. Okay? ये clause क्यों है? क्योंकि इसमें subject अपना है और ये verb भी अपनी है. And this is a part of a sentence. The model who was wearing red dress was very beautiful.
द मॉडल, मॉडल थी। कौन सी मॉडल? मॉडल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी हमें, उसको कैसे डिस्क्राइब किया? हु वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। नाउ दिस इज अ क्लॉज, ये क्लॉज है। वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सो दिस इज अ क्लॉज हियर। Is it clear? It's a part of a sentence which has a subject and verb of its own is called a clause. Let's learn what is an adjective clause. Adjective clause is also called a relative clause. This is the first point कि adjective clause को ही relative clause भी कहा जाता है. Okay? Second thing is, it is a dependent clause that modifies a noun or a pronoun. इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज को, एंड इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन and which connects it to the noun or pronoun it describes. It functions as an adjective and consists of multiple words. Next is that it functions as an adjective. Adjective की तरह काम करता है ये, और एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। Unlike I just quoted one example, she is a beautiful girl. तो beautiful एक ही वर्ड ने डिस्क्राइब कर देता, लेकिन रिलेटिव क्लॉज में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो four things we have to keep in our mind. Number one is adjective clause is also called a relative clause. Number two, it is a dependent clause. Number three, it starts with a relative pronoun, and number four is it acts as an adjective and consists of multiple words. तो अब देखें कि relative pronouns कौन कौन से होते हैं। which, where, who, whom, when, why, whose, that. These are all called relative pronouns. ये सारे relative pronouns हैं। Learn them. अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इट विल बी easier for you to identify relative clause. आपको बहुत आसान हो जाएगा relative clauses को identify करने के लिए. Now let's understand with the help of these examples. This is a place which you always wanted to visit. अब किसके बारे में बात हो रही है? प्लेस के बारे में, और प्लेस को क्या के बारे में आगे क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? Which he always wanted to visit. So this is a relative clause. Yeah, this is an adjective clause. Why adjective clause? Because it has begun with which. Relative pronoun से शुरू हुआ है ये, और relative pronoun कौन सा है यहाँ पे? Which. So that is why it is a relative clause or adjective clause. दोनों एक है। Second is it is a dependent clause. अब dependent कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम इतना सही पढ़ें which he always wanted to visit, does it convey complete sense? No, it doesn't, isn't it? तो it needs principal clause. ये जो principal clause है इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको main clause की ज़रूरत पड़ती है to complete its sense. Okay? This is a place which he always wanted to visit. अब complete हुआ। और एक चीज़ आपको और बताऊँ मैं कि जो noun या pronoun होता है वो immediately relative pronoun से पहले होता है। जैसे this is the place. Place यहाँ पे noun है, इसके बारे में ये बात हो रही है, इसको describe कर रहा है। Next example is the police caught the people who did not wear the mask. The police caught the people. कौन से people? लोग। और कौन से लोग? Who did not wear the mask. तो who is here subject है, इस people के लिए है, तो people को describe कर रहा है, तो ये subject की तरह काम कर रहा है, and where is
वर्ब, तो इसकी वर्ब भी है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ इट्स ओन। तो एक तो पैरामीटर ये करेक्ट हो गया इसका। सेकेंड थिंग इज दैट इट हैज बिगन विद relative pronoun. All right, who is a relative pronoun, तो who से start हुआ है। Third is that it is a dependent clause, अपने आप में पूरा नहीं है ये, तो principal clause पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब ये कंप्लीट सेंस कन्वे करेगा, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। और बहुत सारे वर्ड्स मिलके डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रनाउन को, तो ये बहुत सारे वर्ड्स है। पीपल who did not wear the mask. Okay. Next, Zakir Hussain, who was an intellectual and India's Muslim president, died on May 3rd, 1969. Zakir Hussain. Now, it's about Zakir Hussain. Zakir Hussain के बारे में बात हो रही है, and this is a relative क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है ये अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि इट हैज़ बिगन विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु से शुरू हुआ है ये डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट हु, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब भी है इसकी अपनी, तो that is why it is a relative clause या adjective clause. Okay. Now Pandit Nehru, whom children call Chacha Nehru, was a great statesman. Pandit Nehru, whom children call Chacha Nehru, ये हो गया आपका adjective clause या relative clause, क्योंकि ये relative pronoun से शुरू हुआ, इसका अपना subject है, इसका अपना वर्ब है। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज। पंडित नेहरू, जिनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, वो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन थे। ओके, अब ये तो हो गया हमारा अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ वन थिंग मोर, डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है? अब देखो, डिफाइनिंग होता है जिसके बिना बात बने ना, या मतलब कंप्लीट ही ना हो सेंस, जैसे कि दिस इज अ प्लेस विच यू ऑलवेज वांटेड टू विजिट। दिस इज अ प्लेस अगर इतना सही कहें हम तो भी बात नहीं बन रही है, और ये हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ये कन्वे होता है, इसे कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। दिस इज अ प्लेस विच यू ऑलवेज वांटेड टू विजिट, अब पूरा सेंस क्लियर हो गया और दोनों की एक दूसरे को ज़रूरत है, इसमें कोई कॉमा नहीं लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी वैसे ही है, तो ये भी डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, मिस नहीं कर सकते हम ये दोनों में से किसी भी पार्ट को। थर्ड वन इज जाकिर हुसैन। अब देखना यहाँ कॉमा लगे, जाकिर हुसैन who was an intellectual and India's first Muslim president, again comma is there, died on May 3rd 1969। अब देखो कि ये अगर हम इतना सा पढ़ें, जाकिर हुसैन डाइड ऑन May 3rd 1969, अगर हम इतना सा पढ़ें तो ये कंप्लीट है अपने आप में, इसमें ज़रूरत नहीं है हु वाज एन इंटेलेक्चुअल एंड इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ना भी हो तब भी चलेगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है और इसके बिना भी चल जाता, तो दिस इज कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ओके, अब नेक्स्ट ऑल्सो पंडित नेहरू, कॉमा, whom children call चाचा नेहरू, अगेन कॉमा इज देयर एंड दिस इज अ क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है ये। was a great statesman, अब हम इतना सा ही पढ़ते, ये पंडित नेहरू was a great statesman, इतना काफ़ी था, लेकिन ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, है ना, इसके बिना भी चल रहा था, तो इसे कहते हैं हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, इसके बिना भी चल जाता इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, जिसके बिना नहीं चलता उसे कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल जो है ये डिफाइनिंग क्लॉज के हो गए, और ये जो
दो एग्जाम्पल्स हैं ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के हो गए। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? We have learnt about adjective, then clause, then relative clause or adjective clauses are also called relative clauses. They are dependent clauses. They begin with relative pronouns and they function as an adjective, and there are multiple words which describe a noun or a pronoun. Okay, and we have also learned that they are also called defining or non-defining clauses. So that's all for today, and I hope it's clear. I hope it's understood. And if so, do like, comment, share, and subscribe to my channel. And in the next video, we shall learn about noun clauses. Till then, goodbye, and thanks for watching.